وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ کتاب الحج میں آج حج کی شرائط کا بیان ہے کہ وہ کون سی شرائط ہیں جن سے حج فرض ہوتا ہے۔ شروط و فرضیت الحج۔ شروط شرط کی جمع ہے، کسی چیز کے واقع ہونے سے پہلے جو ضروری ہے اسے شرط کہتے ہیں۔ شروط و فرضیت الحج، حج کی فرضیت کی شرائط۔ الحج فرض عین، حج فرض عین ہے۔ الحج مبتدا، فرض عین یہ اس کی خبر۔ فرض کی دو قسمیں ہیں، ایک فرض کفایہ اور ایک فرض عین۔ فرض کفایہ کہ اگر پورے افراد میں سے چند لوگ کر لیں تو وہ سب کی طرف سے ادا ہو جائے، اور فرض عین جو جس پر فرض ہو اسی پر ادا کرنا لازم ہے۔ ایک طرف سے یا ایک شخص کی طرف سے کیا گیا حج دوسروں کی طرف سے بھی ادا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا، اسے فرض عین کہتے ہیں۔ الحج فرض عین، حج فرض عین ہے۔ مرتن واحدتن فی العمر، عمر میں ایک مرتبہ۔ علی کل فرد من ذکر او انثی، ہر فرد پر، چاہے وہ مرد ہو او انثی، چاہے وہ خاتون ہو۔ اذا توفرت، جب پائی جائیں، فی ہے اس بندے میں، اس فرد میں، اشروط العطیہ، آنے والی شرائط، یعنی درج ذیل شرائط اگر پائی جائیں تو ایسے شخص پر حج فرض ہوتا ہے۔ وہ شرائط دیکھتے چلے جائیں۔ نمبر 1، ان یکون مسلمن۔ عرض کیا تھا ان یکون کا معنی ہے ہونا، ان مصدریہ ہے اور یکون کو مصدر کے معنی میں کر دے گا۔ یکون کا معنی ہے ہوتا ہے یا ہوگا، لیکن ان لگ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہونا۔ ان یکون مسلمن، اس فرد کا مسلمان ہونا، یہ شرط ہے۔ فلا یجب علی الکافر، کافر پر حج واجب نہیں ہے۔ آپ دیکھیے فلا یجب پر جو ہے وہ نمبر 1 لکھا ہے، فٹ نوٹ میں ہم جا کے دیکھتے، لا یجب لا یفترض لا یلزم، یعنی کافر پر حج لازم نہیں ہے۔ نمبر 2، ان یکون بالغا، یہ فرد کا بالغ ہونا۔ فلا یجب علی الصبی، چھوٹے بچے پر حج فرض نہیں۔ نمبر 3، ان یکون عاقلا، عاقل ہونا۔ فلا یجب علی المجنون، بس مجنون پر واجب نہیں۔ نمبر 4، ان یکون حرا، آزاد ہونا۔ فلا یجب علی الرقیق، بس واجب نہیں ہے غلام پر۔ آج کل سب آزاد ہیں، اس لیے آج کے اعتبار سے تو یہ شرط سب میں پائی جاتی ہے۔ نمبر 5، ان یکون مستطیعا، اس فرد کا صاحب استطاعت ہونا۔ مستطیع، یہ مستفعل کا وزن ہے، استطاع یستطیع استطاعا فهو مستطیع۔ فلا یجب، پس واجب نہیں ہوگا حج، علی، اس بندے پر، الذی لا یستطیع، جو طاقت نہیں رکھتا، جو استطاعت نہیں رکھتا۔ استطاعت کا معنی کیا ہے؟ ومان الاستطاعت، استطاعت کا معنی یہ ہے دو چیزیں بندے کے پاس ہوں، اور تیسری چیز ہو ان یملک الزاد والراحلۃ، کہ وہ بندہ ایک تو زاد کا معنی خرچہ، خرچے کا مالک ہو، اخراجات کا مالک ہو، والراحلۃ، اور سواری کا مالک ہو۔ راحلہ سواری کو کہتے ہیں، رحلہ اور روحلہ سفر کو کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، کہ قریش کا جو سفر تھا وہ سردی اور گرمی کا تھا۔ گرم علاقے میں سردیوں میں چلے جاتے اور ٹھنڈے علاقے میں گرمیوں میں۔ تو زاد اور راحلہ زائدین، یہ دونوں کی دونوں چیزیں اس کے پاس ہوں، زائد ہوں، ان نفقت عیالہ، اس کے بچوں اور گھر والوں کے اخراجات سے زائد ہوں، لمدت غیابی،
اس کے غائب رہنے کی یعنی اس کے حج کرنے کے مدت کے دوران. حج کے مثلاً اس کو 20 دن ہے، 40 دن ہے، 10 دن ہے، جو بھی ہیں اتنے دن میں گھر والوں کے پاس بھی کھانے پینے اور اپنے اخراجات کے لیے رقم ہو. اس رقم کے علاوہ اگر اتنی رقم ہے کہ جس سے آنے جانے کا خرچ اور وہاں کے اخراجات پورے ہو سکتے ہیں تو اس پر حج فرض ہے. شروط وجوب الادا، یہ شرائط اب ہو رہی ہیں وجوب ادا کی. وجوب ادا کی ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں، دو لفظ سمجھ لیں. نمبر ایک، وجوب ایک ہوتا ہے نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. پہلی جو شرائط تھی وہ تھی نفس وجوب کی، اب شرائط ہیں وجوب ادا کی. نفس وجوب اور وجوب ادا. نفس وجوب کا معنی کہ کسی چیز کا محض واجب ہونا، محض واجب ہونا، نفس کہتے محض کو. اور وجوب ادا اس کا معنی ہے کہ ادائیگی کب آپ پر واجب ہو. ایک مثال میں عرض کرتا ہوں، آپ کو بالکل واضح ہو جائے گی بات. نماز ہے، نماز کون پڑھے گا؟ جی نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، صحت مند ہو، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ وضو والا ہو اور مکلف ہو. عورت ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہو، جنابت سے پاک ہو. اگر یہ چیزیں پائی جائیں گی تو ایسا بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، ایسا بندہ. اچھا، اس کو کہیں گے کہ یہ جو میں نے 7-8 شرائط گنی ہیں، یہ شرائط نفس وجوب کی ہے کہ یعنی کس بندے میں یہ شرائط ہوتی ہیں؟ جس بندے میں یہ شرائط ہوتی ہیں وہ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس پر نماز ضروری ہوتی ہے. اب یہ جو شرائط ہوں گی ہیں نفس وجوب کی، اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا کہ ایسا بندہ جس کے اندر یہ شرائط پائی جائیں وہ نماز ادا کب کرے گا؟ اس کے لیے ہے کہ وقت ہو جائے، یہ ضروری ہے. قبلہ رخ ہو جائے، وہ ضروری ہے. یعنی ایک ہوتے ہیں نفس وجوب اور ایک ہوتا ہے وجوب ادا. اس کی اور مثال بھی ہم عرض کرتے. دیکھیے ہم کلاس میں بیٹھے ہیں، روزہ رکھنے کی شرائط ہم میں پائی جاتی ہے. کیوں؟ ہم عاقل ہیں، ہم بالغ ہیں، صحت مند ہیں، تندرست و توانا ہیں. تو ہم کہیں گے کہ نفس وجوب یعنی محض روزے کے واجب ہونے کی شرائط ہم میں ہیں، لیکن وجوب ادا، روزہ جب ادا کریں گے اس کی شرائط اب نہیں ہے. کیوں؟ اس کی شرائط میں وقت بھی ہے اور اب رمضان نہیں ہے، لہذا نفس وجوب تو ہے لیکن وجوب ادا وہ وقت پر ہوگا. آپ کے پاس مثلا آپ کے پاس 4 لاکھ روپے، 20 لاکھ روپے موجود ہیں اور آپ صاحب نصاب ہیں، لیکن آپ صاحب نصاب ہونے کے باوجود، اچھا آپ صاحب نصاب، ہم آپ کو کہہ دیں گے کہ آپ پر نفس وجوب ہو چکا ہے زکوٰۃ کا، یعنی وہ کنڈیشن ہے آپ کی کہ آپ پر زکوٰۃ ہوتی ہے، لیکن ادا کب کریں گے؟ بھئی جب آپ کا سال گزرے گا. یہ دو باتیں سمجھ لیں، یہ فقہ کے ایک بنیادی جو ہے نا وہ ٹرم اور اصطلاحات ہیں. تو نفس وجوب تو ان چیزوں سے ہوتا ہے، مثلا ٹھیک ہو، ٹھاک ہو، پیسہ ہو، وغیرہ وغیرہ، یہ نفس وجوب ہے. ایسے بندے پر تو ہوگا حج فرض، لیکن کرے گا کب؟ اب ہوگی وجوب ادا. یہ چیزیں پائی جائیں تو وجوب ادا ہو جاتا ہے. وہ ذرا دیکھیے ذرا، لا یجب ادا الحج، حج کا ادا کرنا واجب نہیں ہے، الا اذا وجدت الشروط الاتیہ، مگر جب آنے والی شرائط پائی جائیں، درج ذیل شرائط پائی جائیں. نمبر 1، سلامت البدن، بدن کا صحیح سالم ہونا، صحیح سالم ہونا. فلا یجب ادا الحج، پس واجب نہیں ہوگا حج ادا کرنا. علی مقعدن، مقعد، مقعد آپ دیکھ لیجئے ذرا فٹ نوٹ میں نمبر 2 کو. مقعد الذی اصیبہ، اصیبہ بدائن، یہ با اور دا. المقعد کس کو کہتے ہیں؟ الذی، وہ بندہ، اصیبہ جس کو پہنچ گئی ہو، اصیبہ وہ پہنچ چکا ہو، اس کو لڑ گئی ہو، اس کو لاحق ہو چکی ہو،
बिदा इन, बा हरफ जार है, दा कहते हैं बीमारी को। ऐसा बंदा जिसको ऐसी बीमारी लायक हो गई हो, मनअहू मिनल मश, कि उस बीमारी ने इसको चलने से रोक दिया हो। बाज मर्तबा बंदा मफलूज हो जाता है, टांगे काम छोड़ गई हैं और बिल्कुल चल ही नहीं सकता, इसको कहते हैं कि सलामत बदन नहीं रहा। यह है मुकाद। देख लीजिए, फला यजिब अदा उल हज, लफ्ज है ना दा, दा कहते हैं बीमारी को, और इसका जो उलट है वो है शिफा, यानी तंदुरुस्ती की तरफ आना। हदीस में है ना, लिकुल्li दा इन दवाउन, हर बीमारी की शिफा है, हर बीमारी की शिफा है। लिकुल्li दा इन दवाउन, हर बीमारी की दवा है, शिफा नहीं, हर बीमारी की दवा है। तो खैर, फला यजिब अदा उल हज, हज अदा करना वाजिब नहीं है, अला मुकादिन, मुकादिन बीमारी की वजह से बैठे शख्स को, वह मफलूजन, और ऐसे शख्स को जो फालिज ज़दा हो। मफलूज ये उर्दू में भी लफ्ज आता है। वह शेखिन फानिन, और ऐसे बूढ़े आदमी पर, फानिन फना यफनी, फिना फना यफनी फनाअन फहुआ फानिन, फान कहते हैं खत्म होने वाले को, फना होने वाले को फान कहते हैं। असल में था फानियुन, फानी, जिस तरह कहते हैं ना ये जहान फानी है, यानी ये फना होने वाला है। फानियुन फाइलुन का वजन है। तो या पर चूंकि जो है वो तनवीन सकील हुआ करती है और मुश्किल होती है, इसलिए या की उस जो तनवीन को गिरा, या को गिरा के तनवीन उस पर, उससे पहले वाले हर्फ पर लगा देते हैं। फानियुन से बनेगा फानिन। शेखिन फानिन, और ऐसा शेख और ऐसा बूढ़ा शख्स जो फना होने वाला हो। क्या माना, यानी ऐसे बाज बूढ़े होते हैं कि बस वो कब्र में जिनकी टांगे हैं ना, हम उर्दू में बात करते हैं, तो इस तरह का अगर बूढ़ा है और वो ला यक़दिर अला सफर, वो सफर पर कादिर ही नहीं है, तो इस पर हज फर्ज नहीं है, क्योंकि सलामत बदन नहीं है। कुरान करीम में भी है ना, कुल्लु मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका जिल जलाली वल इकराम। यहाँ लफ्ज फान ये सम फाइल है। कुल्लु मन अलैहा, हर वो बंदा जो इस जमीन पर है, फान वो खत्म होने वाला है। तो पहली शर्त सलामत बदन, दूसरी शर्त जवालो मा यमन जिहाब, जवालो जायल हो जाना, मा उस चीज का, यमन जिहाब जो जाने से माने है। क्या माना, आपका रास्ता पुरअमन नहीं है, रास्ते से जो चीज मना कर रही है आपको वो जायल हो, ये भी शर्त है। जायल हो ये भी शर्त है। मसलन हज तो फर्ज है लेकिन कैद में है, अब अब अदायगी फर्ज नहीं होगी। अच्छा, ऐसा है कि उसको पता है कि हमारे इलाके का जो नंबरदार है, चौधरी है, अगर मैंने, या इलाके का सुल्तान है, इलाके का जागीरदार है, अगर पता चल गया कि हज पे जा रहा है तो वो कत्ल कर देगा। वो मना करता है कि हज पे नहीं निकलना, यानी मतलब कहने का ये है कि हज पर जाने से जो चीज माने है वो माने न हो, फिर हज फर्ज होता है। अगर वो माने मौजूद हो फिर हज फर्ज नहीं होता। इसलिए दूसरी शर्त यह, जवाल मा यमन जिहाब, जायल होना उस चीज का जो जाने से मना करती है, वो जायल हो तब हज फर्ज है। फला यजिबु अदाउहु, बस वाजिब नहीं होगा हज को अदा करना। अदाउहु, हु जमीर का मर्ज हज है। अलल महबूस, महबूस हबस से, हबस किसको कहते हैं, जिसको बंद कर दिया गया हो, हबस बंद कर दिया गया हो। अलल महबूस बंद शुदा यानी कैदी पर। वल खाइफ मिन सुल्तान, और ऐसा शख्स जो सुल्तान से डरा हुआ हो, डरा हुआ हो। अल्लदी यमनउ अनिल हज, वो बंदा जो हज से मना करता है, वो बंदा जो हज से मना करता है। ऐसा सुल्तान जो हज से मना करता है, बंदा उससे खैफ हो तो फिर उस पर हज फर्ज नहीं है।
हज फर्ज नहीं है। नंबर 3, अमन तरीक, रास्ते का पुरअमन होना। अगर रास्ता ऐसा है, ये वो रास्ता मुराद है कि जिसमें आम तौर पर लोग पैदल या जमीनी सवारी पर जाते हैं, और अगर आसमानी सवारी है तो आम तौर पर वहां पर मना नहीं हुआ करता। इसलिए इस रास्ते से मुराद वो रास्ता है कि तरीक हो, जमीनी तरीक हो या आसमानी हो, बहरहाल अगर उस रास्ते पर किसी शख्स को अमन मुयस्सर नहीं है, जाऊंगा तो लुट जाऊंगा, तो फिर हज फर्ज नहीं है। कुरान करीम में भी इंशाल्लाह आप इसका तज़किरा पढ़ चुके होंगे या पढ़ लेंगे। अमन तरीक, रास्ते का पुरअमन होना। फला यजिबु अदाउहु, फला यजिबु अदाउहु, पस अदा करना वाजिब नहीं है बंदे पर। इजा लम यकुनी तरीको मअमूनन, जब रास्ता जो है वो पुरअमन न हो। मामून का माना पुरअमन, रास्ता जब पुरअमन न हो तो हज करना इस बंदे पर वाजिब नहीं है। नंबर 4, वजूद ज़ौजिन औ महरमिन, औरत के लिए शर्त है वजूद ज़ौजिन, खामद का मौजूद होना, औ महरमिन, या किसी महरम का मौजूद होना। महरम की हाशिया उन्होंने लिखा है कि ये बंदे उसके महरम हैं, ये बंदे उसके महरम हैं। हुवल्लज़ी ला यहिल्लु लहु ज़वाजुहा बिसबबिन नसब, महरम उसको कहते हैं कि नसब की वजह से उससे निकाह ना हो सकता हो। अविल मुसारहत, या ससुराली रिश्ते की वजह से उससे निकाह ना हो सकता। अविल रजा, या दूध पीने वाले रिश्ते की वजह से उससे निकाह ना हो सकता, वो महरम है। कल अबे, जैसे अब्बू जान, वल जदे, दादा जान, अम, चाचा जान, खाल, खालू जान, अबू जौज, अबू जौज, ससुर, इब्न बेटा, इब्नुल इब्न पोता, अख भाई, इब्नुल अख भतीजा, इब्नुल उख्त भांजा, जौजुल बिंत दामाद। ये वो अफराद हैं जिसमें ससुराली भी आ जाते हैं और नसबी भी आ जाते हैं। देखिए जरा, वजूद जौजिन, खामद का पाया जाना, और महरमिन, या महरम का पाया जाना, महरम का पाया जाना, फी हक मरआ, खातून के हक में, औरत के हक में ये जरूरी है। सवा उनका नतिल मरअतो शाबतन, बराबर है कि वो औरत जवान हो और अजूजतन, या बूढ़ी हो, बूढ़ी हो या जवान हो, हर औरत के हक में जरूरी है कि उसका खावंद, या ये है कि उसका महरम मौजूद हो, महरम मौजूद हो। नंबर 5, अदमो क़यामिल इद्दत। अच्छा, फला यजिबु अदाउल हज, बस वाजिब नहीं रहा हज अदा करना, इदा लम यकुन माहा जौजुन, जब उस खातून के साथ उसका खामद न हो, और महरम, या उसको कोई महरम न हो, उस पर हज फर्ज नहीं है। नंबर 5, अदम क़यामिल इद्दत फी हक़्क़िल मरा, इद्दत का जारी न होना औरत के हक में। यानी एक औरत है, इद्दत में है अभी, इद्दत तलाक है, इद्दत मौत है, पैसे भी हैं, महरम भी साथ है, लेकिन अभी खामद फौत हो गया, बेटा जवान है, उसका खर्चा भी उठा सकती है, तो अब हज फर्ज नहीं रहा इस पर। कब फर्ज होगा? जब इद्दत खत्म होगी, तो फिर अगले साल करेगी। फला, अच्छा, इद्दत अदम क़यामिल इद्दत, इद्दत का कायम न होना औरत के हक में। फला यजिबु अदाउहु, बस हज फाजिब नहीं होगा अदा करना, अलल मरअत, उस औरत पर, इजा कानत मुअतद्दतन, जब वो औरत इद्दत में हो, जब वो औरत इद्दत में हो, मिन तलाकिन, चाहे वो इद्दत तलाक की हो, औ मौत, या वो इद्दत मौत की हो, मौत की इद्दत हो। शुरू सेहत अदा। अच्छा, अब यह है कि कुछ थी नफ्स वजूब, कुछ वजूब अदा। अब आपका हज सही कब होगा? चंद शराइत हूं तो हज सही होता है, उन शराइत को जरा देख लीजिए।
ला यसीहु अदाउल हज, हज अदा करना सही नहीं है, इल्ला इजा तवफ़रत अशरूतुल आतिया, जब आने वाली शराइत पाई जाए, जब आने वाली शराइत पाई जाए। जी, नंबर एक, अल इहराम, इहराम, इहराम जो है वो शर्त है। फला यसीहु अदाउल हज, बस हज अदा करना सही नहीं होगा, बिदून अल इहराम, बगैर किसी इहराम के, बगैर इहराम के आपका जो हज है वो दुरुस्त नहीं होगा। आगे देखिए जरा, अल इहराम, इहराम जो है किस चीज का नाम है? हुआ नियतुल हज मा तलबिया मिनल मीकात, आप मीकात से तलबिया के साथ हज की नियत के लिए आए, इसी का नाम इहराम है। अमली तौर पर आप व नज सियाब अल मखीता, सिले हुए कपड़े हैं आप उनको उतार दें, और वर्निदा सियाबिन गैर मखीत रजुल, और पहन लें ऐसे कपड़े जो सिले हुए न हों मर्द के लिए, और वयुस्तहब यकून इजारन वरिदान, और मुस्तहब ये है कि वो एक ऊपर की चादर हो और एक नीचे की चादर हो। इजार और रिदा, रिदा ऊपर की चादर और आपका जो इजार होगा वो नीचे की चादर हो। वह तलबिया, अच्छा तलबिया ये है, ये अन यकूल, तलबिया ये है कि बंदा कहे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया आपने पढ़ना है। तो हज की अदायगी के सेहत के लिए पहली चीज है एहराम का होना, एहराम का होना। दूसरी चीज अल वक्तुल मखसूस, मखसूस औकात का होना, यानी अगर औकात मौजूद हैं तब तो ठीक है, और अगर औकात नहीं है तो फिर हज नहीं है। फला यसिह अदाउल हज, बस हज अदा करना सही नहीं होगा, कबल अशहुरिल हज, हज के महीने आने से पहले। हज के महीने ये हैं, अशहुर हज हिया शव्वाल व जुल्कादा व अशरतिन जिल हज हिज्जा, शव्वाल, जुल्कादा और जुल्हज्जा के पहले 10 दिन। फमन ताफा औ सआ कबल ज़ालिका, जिसने इनसे पहले तवाफ किया या साई की है, उसकी साई और तवाफ दुरुस्त नहीं होगा। वयसिहुल इहराम माल कराहते कबल अशहुरिल हज, हज के महीनों से पहले अगर किसने एहराम बांध के चलता रहा कि 2-3 माह में पहुंच जाऊंगा, तो अशहुर हज यानी शव्वाल से पहले पहले एहराम बांध कर जाना। मकरूह तो है लेकिन एहराम इसका समझा जाएगा, एहराम समझा जाएगा। नंबर 4, अल बिका उल मखसूसा, बुकातुन की जमा है बिका, बुका टुकड़े को, हिस्से को, और जमीन के खित्ते को कहते हैं। तो मखसूस जगहों, जगह ये शर्त है। वह अर्जो अराफात, अराफात लिलवुकूफ, वकूफ अरफा के लिए जो जमीन है अरफात की वहां जाना है। वल मस्जिद अल हराम ले तवाफ जियारा, तवाफ जियारत के लिए मस्जिद हराम में आना है। और तो फला यसीहु अदा उल हज इजाफात वकूफ बे अरफाता फी वक्त वकूफ, वक्त वकूफ जो है ना, वक्त वकूफ यानी अरफा में वकूफ अरफा का मखसूस वक्त है, मखसूस वक्त है। तो उस मखसूस वक्त में आपने अरफा में जो है वो नहीं ठहरे, वहां लहजा के लिए भी नहीं गए, तो फिर आपका जो है वो अरफा ना होने की वजह से हज फौत हो जाएगा, हज फौत हो जाएगा। फला यसियु अदा हज, हज का अदा करना जो है वो सही नहीं है। इजाफात अल वकूफ बेअरफाता, जब अरफा में किसी बंदे का वकूफ फौत हो जाए। फी वक्त
वकूफ वकूफ के औकात में, वकूफ के औकात में आगे मुस्तकिल आ रहा है वकूफ के औकात का तज़किरा। वकदा ला यसीहु अदाउहु, इसी तरह हज अदा करना सही नहीं है इज़ा फात तवाफ़ु ज़ियारत, जब तवाफ़ु ज़ियारत आपका फौत हो जाए, बाद वकूफ बेअरफा, अरफा पे वकूफ के बाद, अरफा के वकूफ के बाद आपका तवाफ़ ज़ियारत, एक बंदे ने अरफा की, अरफा के बाद जो है वो फौरन घर निकल आया, वो तवाफ़ ज़ियारत करता ही नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स के हज होगा ही नहीं, हज इसका बातिल हो जाएगा। मीकातुल एहराम, एहराम के मीकात का तज़किरा, इंशाअल्लाह हम मीकात एहराम का तज़किरा कल पढ़ेंगे। मीकात एहराम का हम तज़किरा कल पढ़ेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल फिक़्हुल मुयस्सर का जो दूसरा हिस्सा है वो है किताबुन निकाह से शुरू। किताबुन निकाह के शुरू में मुसन्निफ ने कुरान करीम की आयत और कुछ अहादीस मुबारका बयान की हैं। आज के सबक में निकाह का माना बयान किया जा रहा है कि निकाह का माना क्या है। माना निकाह, अन निकाह फिल लुगत अज़्ज़म वल जिमा, निकाह के दो मानी है, एक माना है लुगत का और एक माना है शरा का। लुगत और डिक्शनरी में निकाह का माना आता है जम करना यानी मिलाना, और जिमा करना यानी हम बिस्तरी को भी निकाह कहते हैं, हम बिस्तरी को। तो लुगत में जम करना, मिलाने और हम बिस्तरी करने को निकाह कहते हैं। नंबर 2, निकाह का शरई माना। निकाह का शरई माना यह है कि चंद शराइत के साथ और कुछ अरकान के साथ, बात आ रही है शराइत भी और अरकान भी, शराइत भी पाई जाए और अरकान भी पाए जाए, तो निकाह का अक्द करना ये जो है वो शरई माना है निकाह का। यानी दो बंदों का एक दूसरे के साथ चंद शराइत और इजाबो कबूल के साथ मुआहिदा करना, इसको निकाह कहते हैं, इसको निकाह कहा जाता है। देखिए जरा माना निकाह, निकाह का माना। अन निकाह फिल लुगत, लुगत में निकाह का माना है अज़म, अज़म। ये दो सवालात हैं। अगर मुक़अद शख्स किसी की मदद के जरिए हज कर सकता है तो इसका क्या हुक्म है, इसका क्या हुक्म है। मोहतात बात यह है, मोहतात मोहतात बात यह है कि अगर किसी और शख्स के जरिए हज करने की ताकत रखता हो, यानी और इसको संभाले, वहां उसका तवाफ वगैरह करवाए, तो मोहतात कौल तो यही है कि वो हज कर ले। और एक कौल जिस पर इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह भी हैं और उस पर भी हमारे हजरात ने फतवा दिया है, वो ये है कि उस शख्स पर हज अब फर्ज नहीं रहा, अब वो हज बदल की तरतीब बनाए। अगर खातून बगैर महरम के हज करती है तो क्या हो जाएगा। हज तो उसके जिम्मा से अगर था फर्ज, तो फर्जियत तो अदा हो जाएगी। अलबत्ता यह है कि ये औरत महरम को साथ न ले जाने की वजह से गुनाहगार होगी। इसे कहते हैं कि फर्ज तो अदा हो जाएगा लेकिन गुनाह के साथ होगा। उमरा का भी यही हुक्म है, उमरा का भी यही हुक्म है कि उमरा अदा तो हो जाएगा लेकिन खिलाफ शरा सफर की वजह से इस औरत को गुनाह मिलेगा।
माना निकाह, निकाह का माना अन निकाह फिल लुगत, लुगत में निकाह का माना है अज़म वल जिमा, मिलना और हम बिस्तरी करना। व निकाह फी शरई, शरीयत में निकाह का माना अक़दुन निकाह, शरीयत में निकाह कहते हैं अक़द को यानी उस मुआहिदे को कहते हैं बेशुरूत ही, जो जिसमें शराइत भी हूं, वह अरकान ही, और उसके अरकान भी हूं। आमिर बेग साहब का सवाल है, तो फर्ज तो रहा ही ना उस औरत पर हज। देखिए, एक बंदा जिस पर हज फर्ज मुमकिन है, इस पर हज फर्ज हो, ऐसा नहीं है कि औरत का अगर महरम साथ नहीं है तो उस पर हज फर्ज ना हो, ऐसा नहीं है। ऐसा मुमकिन है कि एक औरत है, उसके पास इतना पैसा मौजूद है कि वो अपना खर्चा भी उठा सकती है और अपने महरम का खर्चा भी उठा सकती है, लेकिन वो महरम को साथ नहीं ले जाती, महरम के बगैर जाती है। अब इस्तिताअत के हवाले से उसके पास महरम की इस्तिताअत है, हज तो फर्ज है। अब फर्जियत जिसे हम कहते हैं ना, नफ्स वजूब, वो तो हो चुका, लेकिन अब वजूब अदा की सेहत के लिए जरूरी था महरम साथ ले जाना, लेकिन महरम साथ नहीं ले गई तो फर्जियत तो उसकी पूरी हो गई, अलबत्ता उसको गुनाह रहा। तो फर्ज औरत पर हो सकता है, हाँ, ये कोताही कर गई कि वो जो है वो, हाँ, अगर खर्चा नहीं है ना, अगर किसी औरत पर के पास महरम का खर्चा ही नहीं है तो उस पर हज फर्ज ही नहीं रहा। सिर्फ अपना खर्चा है, महरम करे तो हज फर्ज ही नहीं रहा, लेकिन अगर वो चली गई हज अदा हो जाएगा, अलबत्ता गुनाहगार होगी। जी। माना निकाह, निकाह का माना क्या है? शरी माना निकाह का है अक़दुन निकाह बेशुरूत ही वारकान ही, निकाह का अक्द करना उसकी मखसूस शराइत और मखसूस अरकान के साथ। हुक्म निकाह, निकाह के हुक्म के मुतालिक कुछ तफसील है। इन अन्नहु सुन्नतुन मुअक्कदतुन फी हालतिल एतदाल, हुक्म निकाह का यह है कि ये निकाह सुन्नत मुअक्कदा है फी हालतिल एतदाल, जब एतदाल की हालत हो, यानी नॉर्मल हालत है, बहुत ज्यादा उसको जो है वो शहवत तंग नहीं कर रही, एतदाल की हालत है, तो निकाह करना सुन्नत मुअक्कदा है। वह वाजिबुन, और वाजिब होता है फी हालत तौकान, ये लफ्ज है तौकान, तौकान की हालत में। तौकान का जो बैनस नीचे लिखा है माना हाशिया में, अतौकान बिफतह ता वल वा, ता और वाव के फतह के साथ तवकान, शिद्दतुल इश्तियाक इलल जिमा, इंसान को हम बिस्तरी की बहुत ज्यादा इश्तियाक हो, बहुत ज्यादा जरूरत है। बेहैसु यखाफुल वुकूअ फी जिना, इस तरह के वो जिना में पढ़ने का उसको सख्त खौफ है, लव लम यतजव्वज, अगर वो शादी नहीं करता, यानी हालत जिसको हालत हिजान कहते हैं, ऐसी हालत, इसको अरबी में हालत तौकान कहते हैं, कि जिना में पड़ने का उसको खतरा है, अगर वो शादी नहीं करता तो ऐसी हालत में निकाह करना वाजिब और लाजिम है। वह मकरूहन, और निकाह मकरूह होगा फी हालत खौफिल जौर, जोर, जब उसको खौफ हो जुल्म करने का। मतलब यह है कि लड़ाई हुई थी, कुछ मसला हुआ था, उसने कहा ठीक है, अब इनकी बेटी भी है, जब आएगी मेरे घर में तो मैं इनको बताऊंगा कि फिर मेरी बहन के साथ इन्होंने क्या जुल्म किया। अब इसको दिल में ये है कि मैं इसको मारूंगा, सजा दूंगा, या उसके ऊपर जुल्म तशद्दुद करूंगा, तो इस हालत में अगर निकाह कर लिया हो तो जाएगा, लेकिन इस नीयत के साथ निकाह मकरूह है और नापसंदीदा है। तो तीन आगे सुन्नत मौकदा, वाजिब और मकरूह। व रुकन निकाह, पीछे आई थी बात अक़दुन निकाह बेशुरूत ही व अरकान ही। रुकन निकाह के दो हैं, अल इजाब वल कबूल,
वल ईजाब, ईजाब को किसको कहते हैं? जिस फरीक का कलाम पहले जुबान से बोला जाए वो होगा ईजाब। और अगर जो दूसरे का जो है ना वो बोला जाए कलाम, उसको कहते हैं कबूल। अल ईजाबु वल ईजाबु, ईजाब क्या है? मा यतलफ़्फ़ज़ु बिही अव्वलन मिन अय्य जानिबिन कान, जिसको मा यतलफ़्फ़ज़ के मा यतलफ़्फ़ज़, जो इंसान जुबान से बोलता है, अव्वलन सबसे पहले, मिन अय्य जानिबिन कान जिस जानिब से भी हो, उसको इजाब कहते हैं। वल कबूल जवाब हो, और कबूल उसके जवाब को कहते हैं। मैं निकाह करता हूं, मैं आपसे निकाह करता हूं, ये इजाब। मैं कबूल करती हूं, ये कबूल। लड़के का बाप कह दे कि मैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करता हूं, इजाब। लड़का कह दे मैं कबूल करता हूं। तो कबूल लड़का भी कर सकता है, लड़की या लड़की का जो होगा वली वो भी कर सकता है। वला बुद्दा अन यकून अल इजाब वल कबूल बिलफ्ज़ैन, और जरूरी है अन यकून अल इजाब वल कबूल के इजाब और कबूल हो बिलफ्ज़ैन ऐसे दो लफ्जों के साथ, युअब्बरु बिहिमा अनिल माजी जिनके जरिए माजी को ताबीर किया जाता हो, और युअब्बरु बिअहदिहिमा अनिल माजी वल आखर अनिल मुस्तकबल, या उनमें से एक को माजी के लिए ताबीर किया जाता और दूसरा मुस्तकबल के लिए। मिसलु अन यकूल, मिसाल के तौर पर यूं कहेगा, ज़व्वजनी ज़व्वजनी, मेरे मेरे साथ उसकी शादी करा दो, निकाह करा दो। फयकूल, और वो कहे ज़व्वज तो मैंने शादी तेरे साथ करा दी। उर्दू में भी है निकाह करते हैं आपके साथ, ठीक है। कबूल करते ये भी है, मैंने निकाह किया, मैंने कबूल किया, ठीक है। तो बहरहाल ये अल्फाज जो है या दोनों माजी के हों या एक माजी का और एक मुस्तकबिल का हो। शुरूतुन निकाह, निकाह की शराइत का बयान। निकाह के लिए 7 शराइत हैं, बड़ी अहम शराइत हैं, इसको आप हजरात जरा समझ लीजिए। अल अव्वल, अल अव्वल पहली शर्त यह है शहादत, शहादत यानी गवाह का होना शर्त है। अगर कोई गवाह नहीं है और दो बंदे वैसे आपस में इजाब कबूल खातून और मर्द ने कर लिया, निकाह नहीं होगा। फला, और गवाहों के लिए भी ऐसे बंदे शर्त हैं। फला यनअक़िदु निकाहुल मुस्लिमैन, दो मुसलमानों का निकाह मुनक्किद नहीं होता इल्ला बिहुजूर शाहिदैन, मगर जब गवाह मौजूद हों, हुर्रैन दोनों आजाद हों, आकिलैन दोनों अक्लमंद हों, बालिग हों, मुसलमान हों, औ रजुलुन वम्रातैन, या एक मर्द और दो औरतें हों, यानी दोनों मर्द हों या दोनों मर्द, एक मर्द और दो औरतें हों। अदूलन कानू और गैर अदूलन, नेक पाक हों या गुनाहगार हों, जैसे भी हों। औ मादूदैन फी कज़फिन, या उन्होंने किसी पर तुहमत लगाई थी तो उनको फिर सजा मिली, तब भी। मतलब यह है कि बस मुसलमान हो, अक्लमंद हो, गुनाहगार है, नेक है, जैसा कैसा है वो शहादत और गवाह बन सकता है। फ़इन तज़व्वजा, एक बात ये ज़हन में रखें, मुसलमान आदमी किसी किताबी औरत से, यहूदी या ईसाई औरत से निकाह करना चाहे कर सकता है, बशर्ते कि वह औरत असली यहूदी और असली ईसाई हो। आज के दौर में बेहतर नहीं है, इसलिए कि फिर औलाद जो है वो वालिदा के नक्शे कदम पर जाकर फसाद मचाती है। फ़इन तज़व्वजा मुस्लिमुन, जब एक मुसलमान ने निकाह किया हो किताबियतन, एक किताबी औरत से, यानी यहूदिया से या नसरानिया से, बिशहादत किताबियैन, दो किताबी बंदों की शहादत और उनकी गवाही, यानी मुसलमान दूल्हा है और औरत जो है वो गैर मुस्लिम और गैर मुस्लिम है। गैर मुस्लिम से ये दो सिर्फ यहूदी या ईसाई हैं, और गवाह जो बन रहे हैं वो किताबी बंदे हैं, यानी वो भी यहूदी या ईसाई हैं, मुसलमान गवाह नहीं है। ऐसी सूरत में निकाह होगा या नहीं होगा?
تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ ان دو کا موقف یہ ہے کہ نکاح ہو جائے گا، اور امام محمد رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے کہ نکاح کرنے کے لیے دو گواہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات یہ سمجھ لیں، شاید یہ ہمارا پہلا موقع ہو، آپ کے سامنے امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان کا قول الگ ملا اور امام محمد کا قول الگ ملا۔ اس کے جو دلائل ہیں انشاءاللہ ہم اگلے سال کتاب الہدایہ میں پڑھیں گے۔ ایسے ہوتا ہے کہ بعض مرتبہ دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں اور دونوں طرف کے حضرات اپنے دلائل کے مطابق موقف پیش کرتے ہیں۔ ہر ایک فریق کے پاس دوسری دلیل کا جواب بھی ہوتا ہے، تو جب دلائل آپس میں ٹکراتے ہیں تو ظاہری بات ہے نظریہ، موقف اور مسئلہ ہر ایک کا پھر الگ الگ ہوتا ہے۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلہ میں امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کا مسئلہ اور ہے اور امام محمد کا اور ہے۔ اب عمل کس پر کیا جائے، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے۔ اگر ہمارے ائمہ کا اس طرح کا اختلاف منقول ہو، اب عمل کس پر کریں گے، تو عمل کے لیے ہوتا ہے کہ فتویٰ کس پر ہے، اور عربی میں کہتے ہیں مفتہ بہا، مسئلہ کون سا ہے، یا مفتہ بہی قول کون سا ہے۔ دو قول آ گئے نا، ایک قول ہے کہ اگر یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کیا اور گواہ یہودی اور عیسائی ہیں تو نکاح ہوگا امام صاحب کے نزدیک اور امام ابو یوسف کے نزدیک، نکاح نہیں ہوگا امام محمد کے نزدیک۔ اب دو قول آ گئے نا، اب عمل کس پر کریں یا کس پر ہم بات کریں، تو اس کو ہم تعبیر کریں گے آئندہ بھی کہ ان دو مسئلوں میں سے مفتہ بہا مسئلہ کون سا ہے، ان دو قولوں میں سے مفتہ بہی قول کون سا ہے، فتویٰ کس قول پر دیا جائے، تو یہ معلوم ہوتا ہے اس کتاب کے علاوہ دیگر کئی کتب سے۔ یہ مسئلہ ہدایہ میں کھڑا ہے اور ہدایہ کی شروحات میں یہ بات واضح ہے، اور امام شامی رحمہ اللہ نے بھی اس کو واضح لکھا ہے، علامہ موصلی رحمہ اللہ نے بھی واضح لکھا ہے کہ اس مسئلہ میں فتویٰ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے قول پر ہے، چونکہ عورت کتابیہ ہے لہذا گواہ بھی کتابی ہو جائیں تو پھر نکاح منعقد ہو جائے گا۔ یعنی بہتر تو یہ ہے کہ مسلم ہوں، لیکن اگر مسلمان نہیں کتابی عورت کے لیے آ جائے تو پھر نکاح ہو جائے گا۔ البتہ اگر ایک مسلمان کسی مسلمان عورت سے نکاح کر رہا ہے اور وہاں پر جو گواہ ہیں، گواہ وہ عورت دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، مسلمان مرد مسلمان عورت سے نکاح کر رہا ہے لیکن گواہ وہاں پر کتابی لوگ ہیں، یہودی اور عیسائی، مسلمان کوئی بھی نہیں ہے، تو اب ان تینوں ائمہ رحمہم اللہ کا اتفاق ہے، اب نکاح بالکل نہیں ہوگا۔ تو یہ جو صرف استثناء قرار دیا گیا ہے وہ صرف اس وقت ہے کہ جب کتابی عورت کے ساتھ نکاح ہو۔ دیکھیے ذرا، فَإِن تَزَوَّجَ مُسْلِمٌ، اگر کسی مسلمان نے نکاح کیا ہو کتابیتن، ایک کتابی عورت سے، بشہادت کتابیین، دو کتابی مردوں کی گواہی کے ذریعے، جاز عند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ، تو امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کے نزدیک یہ جائز ہے۔ وقال محمد، امام محمد فرماتے ہیں لا یجوز، یہ جائز نہیں ہوگا، الا، ہاں اگر یوں ہوتا ہے، ان یشہد شاہدین مسلمین، کہ وہاں پر مسلمان گواہ بھی موجود ہیں نا، تب جائز ہے، وگرنہ جائز نہیں ہے۔ لیکن فتویٰ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول پر ہے۔ نمبر 2، دوسری شرط کیا ہے، ان تکون المرأۃ محللۃ، محللۃ مانا حلال ہونا، یعنی یہ عورت اس مرد کے لیے حلال ہو۔ اگر اس عورت میں حرمت پائی جاتی ہے نسب کی وجہ سے، مثلا بہن ہے، ماں ہے، خالہ ہے، اور خالہ کی بیٹی ہے، خالہ ہے، اچھا اسی طرح بھانجی ہے، بھتیجی ہے، یہ محلل نہیں ہے، یہ اس مرد پر محرم ہے۔
تو عورت کا محلل ہونا، کیونکہ محرم جو ہوتی ہے نا عورت، وہ نکاح کا محل نہیں ہوتی، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، الثانی، دوسری شرط یہ ہے ان تکون المرأۃ محللۃ، عورت حلال ہونی چاہیے۔ حلال کا معنی اس کے ساتھ نکاح درست ہو۔ فإن المحرمات، کیونکہ جس عورت سے نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، لا تکون محلا لحکم النکاح، وہ حکم نکاح کا محل نہیں بنتی۔ کیا معنی؟ کہ جس عورت سے نکاح جائز نہیں ہوتا، آپ اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ نمبر 3، بس یہاں سے انشاءاللہ ہم کل پیش کریں گے۔ ابھی جو پڑھا ہے اب گزارش ہوگی کہ ابھی آپ تکرار کر لیجئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔